Welcome to the new video which is related to the e-recruitment. Today we will discuss e-recruitment. We will discuss about what is e-recruitment, what is the advantages and disadvantages of e-recruitment, what are the main and basic functions of e-recruitment, and what are the job portals, and an example from a Unilever e-recruitment process. We will discuss one by one. Before the e-recruitment process, what was happened? जब e-recruitment process नहीं होता था तो उस सूरत में क्या होता था? You can see the picture where a bulk of people are available for the interview or for submitting their applications. इतने सारे लोगों को एकदम में हैंडल करना, that will be very difficult for the company to handle for the recruitment, to get application, to interview all the person. इतने सारे लोग एकदम से अगर कहीं पे आ जाते हैं, there will be problem. तो ये इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस इश्यू से बचने के लिए कि इतने सारे लोग एक कॉल के ऊपर इतने सारे लोगों का जमा हो जाना, एज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, और यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है और यहाँ के जो लोग हैं उनको उनके जो मिजाज हैं उनको आप बेहतर समझते हैं कि हाउ दे रिएक्ट. तो ऐसी सूरत हाल में what are the basic procedure, what are the alternatives we can use for the recruitment process, उसको सामने रखते हुए फिर जो सॉफ्टवेयर एजेंसीज हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और जो आईटी की कंपनीज हैं, उन्होंने इस चीज़ को, कंपनीज के इन इश्यूज को, इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर ई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो इन्वेंट किया. और अब ज़्यादातर कंपनी इस वक्त ई रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर काम कर रही है. दे डोंट वांट टू कॉल इनिशियली फॉर the interview or for the submission of the application in the office. Applicant can submit their CVs online, और उनके जो अपने जॉब पोर्टल्स हैं, उनकी जो अपनी वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो सकती है. इवन दो the people only call physical interview, only final physical interview they call for the final interview. तो फाइनल इंटरव्यू के लिए सिर्फ जो है एप्लीकेंट को कॉल किया जाता है. अदरवाइज देयर इज नो नीड to call physical appearance for the application submission or for the initial interview or for the initial assessments. So these assessments or interview can be done on the e-recruitment, through e-recruitment process, or the online recruitment, or through internet recruitment. Now, what is internet recruitment? Okay, what is internet recruitment? Selecting candidates through internet. यानी आप अगर लोगों को फिजिकली जो है कॉल करने की बजाय इंटरनेट के थ्रू जो है अगर आप लोगों को सेलेक्ट करते हैं तो दैट्स कॉल्ड द ई रिक्रूटिंग. ओके, e-recruitment also known as online recruitment. Yes, online recruitment या internet recruitment are the same things. Is the practice of using technology and in particular web-based resource for the task involving with finding. You can use e-recruitment for the finding of the applicant, for the attracting and assessing, interviewing and hiring the new personnel. अब नए कैंडिडेट्स को जब आप हायर करने के लिए जा रहे होते हैं उसके लिए उनको फाइंड करने के लिए कि कहाँ वो है, किस मार्केट में अवेलेबल है, उसके लिए भी आप ई रिक्रूटमेंट का जो है को यूज कर सकते हैं. उनको हाउ टू अट्रैक्ट देम एंड फर्दर असिस्टिंग एंड इवैल्यूएशन और इंटरव्यूइंग the new personnel through online. So online recruitment जो है, it is an easier process to attract, to select someone for the job. Online recruitment can reach
a larger pool of potential employees and facilitate the selection process. Yes, definitely जब ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर जो है आपके जो एम्प्लॉइज है, नंबर ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं और आपको अपने जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर फैसिलिटेट करते हैं. What is the main or basic purpose of the e-recruitment? The purpose of e-recruitment is to make the process involved more efficient, effective, as well as less expensive. Yes, जब आप e-recruitment पहले जो लोग हैं वो न्यूज़पेपर में ऐड देते थे और वहीं से जो है लोग फिर उनको या तो बाय पोस्ट सीवी अपना भेजते थे, वो एक एक्सपेंस है. फिर उसके अलावा जो है लोग जो है उनको बाय हैंड सीवी देने के लिए आते थे, तो ये लोगों के लिए भी परेशानी थी और इवन जो सीवी रिसीव करने वाले ऑफिसर्स थे उनके लिए भी परेशानी थी और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, एफिशिएंट नहीं होता था और इवन के क्वालिटी ऑफ हायरिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती थी. इसलिए और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, लेकिन अभी जो है ये एफिशिएंट, इफेक्टिव और लेस एक्सपेंसिव जो है ये ई रिक्रूटमेंट एक्टिविटी है. तो रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को अगर ई रिक्रूटमेंट थ्रू करेंगे तो उसके अंदर ये कंपनी के बेनिफिट होंगे. वाई ई रिक्रूटमेंट इज ट्रेंडिंग, क्यों ई रिक्रूटमेंट के ऊपर लोग जो है कंपनी ज्यादा बिलीव कर रही हैं और उसको ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं. दीज आर द फ्यू फोर बेसिक पॉइंट्स वी विल डिस्कस टुडे. नंबर वन, एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी. जो आप थ्रू न्यूज़पेपर करते हैं, अपनी एड पोस्ट करते हैं या और किसी उसको करते हैं, उसके अंदर आमतौर पर जो है वो उसका एक्सेस जो है वो वर्ल्ड वाइड नहीं होता, बल्कि वो एक सिटी तक लिमिटेड होता है जहाँ पे वो न्यूज़पेपर जाता है. लेकिन ई रिक्रूटमेंट थ्रू आप पूरे जो जो पूरा पूरा मुल्क है उसको आप जो है अप्रोच कर सकते हो. इवन दो पूरी दुनिया के लोग इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं. तो number one is to access the large number of applicants from all over the world. This is the opportunity for the individual and this is the opportunity for the company to get more competent people in the organization. And this is also opportunity for the individual. They can access to the more jobs. They can apply for the more jobs sitting at home. घर से बैठे हुए वो किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक से ज़्यादा जॉब के लिए, वरना तो पूरा पूरा दिन एक ऑफिस में, दो ऑफिस में आप सीवी सबमिट कराते हुए आपका टाइम निकल जाता था. नाउ इट इज़ अ इजियर प्रोसेस टू अप्लाई फॉर द जॉब. Okay, and the second and important point is convenient. Click away from a job industry. Yes, जो जॉब है वो इंडस्ट्री से एक क्लिक की दूरी के ऊपर है कि जो एप्लीकेंट है वो जो है अप्लाई करना चाह रहा है तो एक क्लिक के ऊपर वो अपनी सीवी जो है अपनी इंडस्ट्री को भेज सकता है, कंपनी को भेज सकता है. इसी तरह अगर कंपनी अगर चाहती है तो वो एक क्लिक के ऊपर जो जॉब पोस्ट है वो कर सकती है और विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आप जो है पूरी दुनिया को आप बता सकते हैं कि व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये बहुत ही कन्वीनियंट और इजी प्रोसेस है. इसके अंदर एप्लीकेंट और इंडस्ट्री और कंपनी जो है बहुत इजीली एक दूसरे तक एक्सेस कर सकते हैं. एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट इज द एफिशिएंट इन टर्म ऑफ एक्यूरेसी. ये एक्यूरेसी के लिहाज से, क्योंकि जब आप फिजिकल होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आ जाते हैं, उसमें एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लग जाता है उसको लेकर. तो इसके अंदर एक्यूरेसी भी होती है, करेक्टनेस भी होती है कि इसके अंदर आप गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं जब भी कोई अप्लाई करता है या जब आप कोई शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते हैं किसी कैंडिडेट को, तो उसमें बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं गलती के, क्योंकि ज़्यादातर आपका जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है और उस ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस का रिप्लाई वो करते हैं और उसी पे सारी रिकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं. तो और फौरी तौर पर जो लोग उसमें कर रहे होते हैं उसमें ये नहीं होता कि अगर किसी ने फिजिकल एप्लीकेशन जमा कराई है तो अगर उसका रिकॉर्ड नहीं है तो हो सकता है कि वो गुम हो जाए या आगे पीछे हो जाए. लेकिन इसके अंदर आप एफिशिएंटली और एक्यूरेसी के साथ जो है इसको मैनेज कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम पैसा इसके ऊपर खर्च होता है, टाइम जो है कंज्यूमिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्वालिटी हायरिंग आप कर सकते हैं. तो ये बेसिक 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है जो कंपनीज हैं दे आर मूविंग
toward the e-recruitment training. They are moving their human resource department, कि उनके जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं या रिक्रूटमेंट मैनेजर्स हैं, उनको ह्यूमन कैपिटल के तौर पर तैयार किया जा रहा है कि वो ई रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बेहतर तरीके से जो है उसे इस्तेमाल कर सकें और उसको जो है एफिशिएंट और इफेक्टिव हायरिंग के लिए उसको यूज कर सकें. तो people, the company spending on the human resource professionals to build their competency in the e-recruitment process. Then we have what are the disadvantages. Previously we were talking about the advantages of the e-recruitment, but there are a lot of disadvantages for the e-recruitment. Number one, there is a risk of security issue. There is a technical problem. अगर आपकी वेबसाइट में कोई मसला हो गया तो लोग उस तक एक्सेस नहीं कर सकेंगे और आपका इमेज जो है डेफिनेटली उससे ख़राब होगा. या सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है कि आपकी वेबसाइट को किसी ने हैक कर लिया, उसके अंदर जो है जो जॉब सीकर है वो आपकी पोस्ट को ढूंढते रहेंगे लेकिन वो आपको नहीं मिलेगी. Lack of confidentiality and security of information discourage the posting of a job applicant by job seeker. तो आप जॉब सीकर कोई भी जो है कमेंट करना चाहे तो वो उसके ऊपर कर सकता है और वो सब लोग भी चाहें तो उसको देख सकते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सिक्योरिटी और टेक्निकल इश्यूज जो है दिस इज द डिसएडवांटेज फॉर द ई रिक्रूटमेंट. कि अगर आपका टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो जाता है या आपकी जो वेबसाइट है उससे कोई हाईजैक कर लेता है तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर योर कंपनी. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द लार्ज रिस्पॉन्सेज. जब आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेज होते हैं, हद से ज़्यादा एप्लीकेंट्स आते हैं तो उसके अंदर इस बात के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि इररेलेवेंट एप्लीकेंट्स जो है उनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है. बट इसका भी अभी कंपनियों ने रिक्रूटमेंट जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने बहुत सारे हल निकाल लिए हैं जिससे जो इररेलेवेंट एप्लीकेंट होते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं. उसके लिए वो बहुत स्टैंडर्डाइज जो है SOPs तैयार करके वो अपने सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं और उससे जो रेलेवेंट होते हैं वही एप्लीकेंट ही अप्लाई कर सकते हैं. द रिमेनर एप्लीकेंट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द जॉब. इसी तरह इनफॉर्मल बहुत होता है. विद रिगार्ड टू द सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट, सम कंपनीज फाइंड दैट इट गिव्स ऑफ द रॉन्ग इमेज about them as it is the informal recruitment method. जी, इनफॉर्मल रिक्रूटमेंट मेथड की वजह से जो है कंपनी के इमेज के ऊपर ये बिल्कुल एक प्रॉब्लम हो सकता है. इमेज उसका ख़राब हो सकता है. फॉर एग्जांपल लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो है इनफॉर्मली एड प्लेस कर रहे हैं. इसका मतलब है दे आर हैविंग दी टर्नओवर इशू. इनको लोग कंप्यूटर नहीं मिल रहे, इस वजह से शायद ये सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं. और मैनी अदर issues they can perceived about the company. या वो अगर कोई बंदा आपकी कंपनी से या आपके ऐड से या आपके कंपेटिटर्स जो है कोई अगर कमेंट भी लिखना चाहता है तो वो भी उस पर लिख सकता है और वो आपकी कंपनी के इमेज के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. इसी तरह फ्रॉडलेंट एप्लीकेंट्स, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स होते हैं जो फेक होते हैं और just to get the information related to the company or they just want to know about the hiring officers कि वहाँ कौन ऑफिसर्स है, वहाँ कंपनी की इंफॉर्मेशन कंपनी क्या करते हैं, ऑल दीज थिंग. तो फ्रॉड भी एक प्रॉब्लम जो है आपके लिए पैदा कर सकता है. वो लोग जो फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं. तो हमारे पास ये 4 इश्यूज हैं. टेक्निकल इशू हो सकता है, सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आने से इररिलेवेंसी भी बहुत बढ़ सकते हैं, इनफॉर्मल प्रोसेस की वजह से आपका इमेज जो है लोगों तक रॉन्ग इमेज जो है वो जा सकता है और जो फ्रॉडलेंट एप्लीकेंट है वो आपको अप्लाई कर सकते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन और आपके ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर द फर्स्ट वीडियो ऑन द ई रिक्रूटमेंट.